Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is biomedical waste management. The particular topic related to B.Ed semester 4 optional paper 13, that is issues of conservation and environmental regeneration, and the unit number 2. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। यह B.Ed सेमेस्टर 4 के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन के अंतर्गत यूनिट 2 में है। बायोमेडिकल यानी जैव चिकित्सा के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका प्रबंधन आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि यदि इनका प्रबंधन सही तरीके से न हो तो ये अवशिष्ट पदार्थ विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों को पैदा करते हैं, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट, स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट, इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड contaminate various types of disease that is related to human being, and it is also infectious or harmful for the environment if it is dangerous। यदि हम समझ गए, जान रहे हैं कि यह डेंजरस है, तो निश्चित ही इसका प्रॉपर वे में मैनेजमेंट होना अति आवश्यक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट, स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट, it is compulsory and in a proper way. How it is possible? That means on the basis of 3 steps. Number 1, collection. Number 2, segregation. And number 3, treatment and disposal. यानी सर्वप्रथम इसका संग्रहण सही तरीके से हो, सेकेंड राउंड में इसको अलग अलग किया जाए कि कौन सा पदार्थ किस प्रकार का है, कौन सा अवशिष्ट पदार्थ कैसा है, कहाँ पर उसे सही तरीके से संग्रहित करके रखा जाए, और थर्ड वन कि कैसे उसका निपटारा किया जाए और कैसे उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए, जिससे कि वह दोबारा बीमारी फैला न सके। अगर सामान्य तौर पर सिरिंज, ड्रेसिंग या कुछ एक्सपायरी की दवाएं अगर इधर उधर हम फेंक देते हैं तो वह कहीं पर भी किसी भी मनुष्य को पूरी तरह से संक्रमित कर सकता है। दैट मीन्स इट इज कंटामिनेटेड फ्रॉम ईच वन पर्सन टू द अनदर, सो अल्टीमेटली इट इज हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एम्फेसाइज बायोमेडिकल वेस्ट इन ए परफेक्ट वे। नाउ अब मैं इसे और आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 optional paper 13 issues of conservation and environmental regeneration. Now first, biomedical waste management. Biomedical waste is any waste produced during the diagnosis, treatment or immunization of human or animal research activities pertaining there or in the production or testing of biological or in health camps. Next point, biomedical waste or hospital waste is any kind of waste containing infectious materials. Next point, biomedical waste may be solid or liquid. Examples of infectious waste include discarded blood, used bandage and dressing, discarded gloves or other medical supplies that may have been in contact with blood and body fluids, and laboratory waste. Biomedical waste is generated from biological and medical sources and activities such as diagnosis, prevention or treatment of disease. Now steps involved in biomedical waste management. There are 3 main steps to take in order to handle the process of medical waste disposal from start to finish. Number 1, step 1, collection and segregation. Number 2, storage and transportation. And number 3, finally treatment and disposal. Now number 1, biomedical waste collection and segregation.
As in case for all waste, the waste practices for managing it start at the point of generation when waste is produced. These are usually color coded to help biomedical waste segregation. Number 1, red container, that means sharp waste collection, needle blade razors. Red containers with biohazard symbol, infectious waste collection, that is blood contaminated equipments and IV tubing. Next, yellow containers, that means trace chemotherapy waste collection, example empty vials or gloves or gowns. Now, black containers, hazardous waste collection, that is hazardous medicine, P listed drugs or etc. Now, blue containers, pharmaceuticals waste collection, that is pills or injectable antibiotics. Now, yellow sealed containers with radioactive symbol, that is radioactive waste collection, lab research liquids or anything contaminated by radiotherapy. Step 2, biomedical waste storage and transportation. If you are in contact with medical waste disposal company, it will handle safe storage and transportation for you. In any case, clinical waste need to be stored in a secure facility that is off limit to general public and well separated from any area that might be used for food or drink consumption. Storage is essential until medical waste can be disposed of in bulk. Now, waste management is the most important and provide a special vehicle equipped with state of the art defensive tools. Now, step 3, biomedical waste disposal and treatment. Always remember that medical waste is safely disposed, because if we have to fail, then contaminate the various disease. Now, chemical treatment. This treatment is often used to liquid waste and so that it can be disposed of locally. Next one, irradiation. And last one is, this system are presently being used in waste treatment operation, which include gamma, electron beam, ultraviolet and X-ray. Now, disposal of biomedical waste. Land disposal is typically used for remediation of waste which is decontaminated by above applicable treatment methods. Now, last one is advantages of biomedical waste management. Number 1, planning the waste management and recycling for all of the waste generated in the health care facilities is a crucial task which play an exceptionally important role in the worldwide cleanliness, public health, conservation of resources and sustainability of the ecosystem. Next point, recycling medical waste minimizes utilization of raw materials and reduces the amount of the waste material that must be disposed in a landfill. Next point, it reduces the hazard and risk to the community which can be required by hospital. Next, reduction in the occurrence of HIV, AIDS, hepatitis and other disease transmitted by infectious medical equipment takes place by the proper waste management. Now, awareness about hazard of biomedical waste and its proper disposal is required for a safe and healthy future. Now, biomedical waste management is of great significance because biomedical waste can adversely affect health, inviting serious implication to the people who get in touch with it. Now, lastly, segregation, storage and safe disposal of the waste is the key to the effective management of biomedical waste in a workplace. Now, all thing in हिंदी. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूं. सर्वप्रथम बायोमेडिकल यानी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन.
बायोमेडिकल वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन किसी भी अपशिष्ट का निदान, उपचार या मानव या पशु अनुसंधान गतिविधियों के प्रतिरक्षण के दौरान या जैविक या स्वास्थ्य शिविरों को उत्पादन या परीक्षण से उत्पन्न होता है। बायोमेडिकल अपशिष्ट या अस्पताल का अपशिष्ट पदार्थ किसी भी प्रकार का संक्रमण सामग्री युक्त अपशिष्ट है जो कि संक्रमण की संभावना इससे हमेशा बनी रहती है। जैव चिकित्सा कचरा या अपशिष्ट ठोस या तरल हो सकता है। संक्रमण कचरे के उदाहरणों में जैसे त्याग किया हुआ रक्त, इस्तेमाल की गई पट्टियाँ या ड्रेसिंग, छोड़े गए दस्ताने या चिकित्सा आपूर्ति, अन्य चिकित्सा आपूर्ति शामिल है जो कि रक्त या शरीर के तरल पदार्थ या प्रयोगशाला अपशिष्ट के संपर्क में आने से बीमारियां फैला सकता है। बायोमेडिकल कचरा जैविक और चिकित्सा स्रोतों और गतिविधियों से उत्पन्न होता है और रोगों का निदान या रोकथाम या उपचार जैसे समस्याओं के लिए यह महत्वपूर्ण है और साथ ही ये समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। अब जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण चरण, जैसे कि इसके 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। नंबर 1 संग्रहण और पृथक्करण, नंबर 2 भंडारण और परिवहन, नंबर 3 उपचार और निपटारा। नंबर 1 बायोमेडिकल अपशिष्ट संग्रहण और अलगाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपशिष्टों के लिए उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। अगर इसको अच्छी तरह से यानी ठीक से उसको इकट्ठा कर एक जगह न रखा जाए तब तक ये इधर उधर फैलता रहता है और बीमारियों को फैलाता है। अतः आवश्यकता है कि इसे एक जगह इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे अलग अलग किया जाए। इसके जो तरीके हैं उसमें नंबर 1 लाल कंटेनर में शार्प वेस्ट कलेक्शन जैसे कि सुई, ब्लेड, रेजर। लाल कंटेनर में संक्रामक अपशिष्ट संग्रह जैसे कि रक्त या दूषित उपकरण। उसके अलावा पीले कंटेनर में केमोथेरेपी अपशिष्ट संग्रहण जैसे खाली शीशियाँ, दस्ताने, गाउन इत्यादि। ब्लैक कंटेनर में खतरनाक अपशिष्ट संग्रहण जैसे खतरनाक दवाइयाँ या पी सूचीबद्ध की हुई दवाइयाँ। नीले कंटेनर में दवा अपशिष्ट संग्रहण जैसे गोलियाँ, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स। एक रेडियोधर्मी प्रतीक पीला परिरक्षित कंटेनर जिसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट संग्रहण जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान तरल पदार्थ या रेडियोथेरेपी दवा या दूषित कुछ पदार्थ वैसे। नाउ स्टेप 2 यानी सेकंड चरण बायोमेडिकल कचरा भंडारण और परिवहन। यदि सामान्यतः यदि आप एक चिकित्सक के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना चाहते हैं तो निश्चित ही उसका सही तरह से भंडारण हो और तब उसका परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज पाएंगे। यह आवश्यकता इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से उस काम को करना चाहते हैं जिससे कि किसी भी क्षेत्र में वह भोजन या खाद्य पदार्थों के साथ शामिल न हो और बीमारी को न फैलाए। भंडारण तब तक आवश्यक है जब तक कि मेडिकल कचरे का थोक में निपटारा नहीं किया जा सकता है। परिवहन के लिए आवश्यक है कि अधिकांश मेडिकल कचरा प्रबंधन कंपनियां या मेडिकल जो हॉस्पिटल होते हैं अत्याधुनिक रक्षात्मक उपकरणों से लैस विशेष वाहन का प्रयोग करती हैं जिससे कि ये एक दूसरे जगह से फैल न सके। अब तीसरा चरण बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटारा और उसका उपचार। हमेशा याद रखें कि जब तक मेडिकल कचरे को सुरक्षित रूप से निपटारा नहीं किया जा सकता है तब तक वह निश्चित ही बीमारी ही फैला सकता है। अतः आवश्यकता है कि उसका निपटारा सही तरीके से हो। पैथोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से रिलेटेड वैसे डिस्पोजल पदार्थ किसी भी न किसी तरीके से उनका अपशिष्ट यानी उसका प्रबंधन और उसका निपटारा अच्छी तरह से होना चाहिए। यदि वह किसी तरह से अगर रह जाते हैं या छूट जाते हैं उस स्थान पर तो वो निश्चित ही दोबारा उपयोग के लिए नहीं होते हैं, वो बीमारियां ही फैलाते हैं। अब रासायनिक उपचार, इन उपचारों का उपयोग अक्सर तरल अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए किया जाता है और स्थानीय स्तर पर इसको निपटाया जा सकता है। विकिरण, वर्तमान में इन प्रणालियों का उपयोग अपशिष्ट उपचार कार्यों में किया जाता है जैसे कि गामा या अल्फ़ा, बीटा, गामा या एक्सरे का उपयोग करके इसका निपटारा विकिरण के द्वारा किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा यानी डिस्पोजल खासकर भूमि के अंदर या वैसे स्थान पर जहां पर कि इसके केमिकल के द्वारा इसको गलाया जा सकता है और उसको समाप्त किया जा सकता है जिससे कि सॉइल भी फर्टाइल ही रहे, स्टेराइल न हो, और उपचार विधियों के द्वारा इसे नष्ट किया जा सकता है। अब लास्ट में जैव चिकित्सा
अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ। स्वास्थ्य नंबर फर्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उत्पन्न कचरे के सभी के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो दुनिया भर में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में असाधारण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्चक्रण चिकित्सा अपशिष्ट कच्चे माल के उपयोग को कम करता है और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करता है जिन्हें एक गैप के द्वारा यानी लैंडफिल के द्वारा निपटाया जा सकता है। यह समुदाय के लिए खतरों और जोखिमों को कम करता है जिससे अस्पताल द्वारा हासिल किया जा सकता है। HIV, एड्स या हेपेटाइटिस या अन्य संक्रामक बीमारियां चिकित्सा उपकरणों द्वारा प्रेषित अन्य बीमारियों की घटना में कमी से उचित अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा होता है। उचित प्रबंधन रणनीतियाँ हमेशा ही उपयोग किए हुए सीरीज यानी प्रयुक्त किए गए सीरीज, इंजेक्शन, सुइयों इत्यादि को अवैध व्यापार को भी इससे रोका जा सकता है। एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए बायोमेडिकल कचरे के खतरे को अगर दूर करना है तो उसका सही तरह से निपटारा और जागरूकता आवश्यक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि बायोमेडिकल के जो कचरे होते हैं वो सभी लोगों के लिए हानिकारक हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बीमारी का आमंत्रण है उन्हें रखना और उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं। अतः लास्ट में कचरे का पृथक्करण, भंडारण और सुरक्षित निपटारा एक कार्यस्थल पर प्रभावी तरीके से करना ही उचित प्रबंधन है और इससे स्वास्थ्य लाभ जीवन यापन किया जा सकता है। इसके साथ ही यह टॉपिक समाप्त हुआ और अगले क्लास में एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।